we are taking a topic on data converter. As discussed, the data converters can be classified into D2A, that is digital to analog converter, and analog to digital converter. And we know the signals in nature usually found in either analog or in digital. But looking towards the advantages associated with digital signals, or we can say digital domain, we usually try to convert analog to digital converter. As we know, if I see the easiest way to storage a data, so digital is a better one. Although we can store the analog signals onto a tape, but it is prone to noise. It can be noisy, whereas in digital, there is a little chance to introduction of noise, as well as there is a method to check the errors and rectify that one. So that's why people go for digital medium. So it is easy to store, easy to process, and we know the signals which are in analog, they are prone to noise, and that's why usually we want to convert any signal if I want to store or process to analog to digital. But it doesn't mean that the digital to analog is not needed. All these things are important. Why it is important, that will come to know when we'll go one by one to the various schemes and various applications if we are going to discuss. Can anybody tell me where the digital to analog or analog to digital can be useful? Let me, till that time, I'll classify this, how to classify this data converter. Can anybody tell me where this is applicable, A to D or D to A? Now you are a student of electronics, so at least the application should dwell into your mind. What are there? Let us say if I want to classify D to A, how do I classify? And then I'll see A to D. In D to A, we have two types, and both the types are there in your course. One is weighted resistor DAC, digital to analog converter, and another is R to R ladder type DAC. Now in ADC, there are various types. Out of this, some are there in your course, but the various types are flash type ADC. Then we have counter type ADC. We have single slope ADC and dual slope ADC. So let me combine both here. Single and dual slope ADC, both are there in your course. And one of the important is successive. This is also there in your course. Successive approximation, and this is very logically understanding successive approximation type ADC. So in this way, there are certain types of D2S, there are certain types of A to D. So can anybody tell me the applications, or you are unable to tell me the different applications where it is used? Why do we need to convert analog to digital and digital to analog? अच्छा, आप बताइए, आप गाने सुनते हैं, चाहे वो FM में हो, चाहे मोबाइल में हो, या फिर कंप्यूटर में हो, वह कैसे सुनते हैं? और लगा आप लोगों को सपोज आपकी साउंड रिकॉर्ड करनी है, तो कैसे करते हो? क्या प्रोसेस हो सकती है? इस तरीके से सोचे तो आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा. See, if I want to amplify my voice, आप देख रहे हैं कि मैं माइक्रोफोन के आगे ये बोल रहा हूँ, जो कि इस साउंड को इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं. फिर कई एम्पलीफायर के स्टेजेस रहेंगे, और ये हम एक स्पीकर को अगर दे दिए तो मुझे एम्पलीफाइड वॉइस सुनाई आता है. यूजुअली ये प्रोसेस है, या पीए सिस्टम जो बोलते हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में ऐसे ही रहता है कि देयर इज अ माइक्रोफोन वेयर बाय आई एम स्पीकिंग, so it converts my sound energy to electrical. Then this electrical signal is very weak, so I need to amplify it with the different stages. And lastly, I have a power amplifier here, so that the most of the energy is given to the speaker. Now let me say I want to store my voice, I want to record my voice, so what should I do? अब ये मैंने माइक्रोफोन से मेरे साउंड को इलेक्ट्रिकल में तो कन्वर्ट कर दिया, अब मुझे उसको स्टोर करना है, मे बी इन योर ड्राइव और यू कैन से पेन ड्राइव और एनीथिंग. व्हाट आई नीड टू डू, तो यहाँ ये सिग्नल है एनालॉग नेचर, सो आई नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू एनालॉग टू डिजिटल. Analog to digital, analog signal can be like this some waveform, and this I want to convert it into some digital pattern like this one.
This can be a digital signal whereby it will be either 1 or 0, 1, 1, 0, like that one. So I can store that very well, as we have studied a shift register, flip flop, everything where we can store, and we'll study the memory also where different stages of shift registers are there, and there we can store such data. So do you get the point how I can convert analog to digital? Now एक एप्लीकेशन बताओ जहां D2A यूज करेगा, बताओ अभी। सपोज मैंने ये डेटा स्टोर कर दिया, यानी मैंने जो गाना गाया था उसको ये डिजिटल में मैंने स्टोर करके रख दिया, आपके पेन ड्राइव में है, लेकिन आप उस गाने को फिर से सुनना चाहेंगे तो कैसे सुनेंगे? तब तो लगेगा कि नहीं डिजिटल टू एनालॉग, क्योंकि इस 1010 अगर 1010 बजेगा स्पीकर पे तो गाना समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। आपको उस डिजिटल को फिर से एनालॉग करना पड़ेगा, जो ऐसे आएगा और जो आप स्पीकर पे देंगे तब आपको वो सॉन्ग नहीं आएगा। तो there are certain applications where we need analog to digital, and there are certain applications where we need analog to digital. So let us move to, first we'll see digital to analog signal. It is a bit more easier, plus this D2A is again used in A to D converter. So let us see a different digital to analog. So I can say the block schematic can be something like this one. This can be shown in a square, rectangular, or anything, that doesn't matter. If this is a DAC, to this there may be a reference voltage, let's say VR, and some digital input, let's say D0, D1, like this one, and here I'll get a output which is an analog output. So it means some reference voltage is needed, some digital data as an input is needed, which will be 1010 sort of, and its analogous equivalent value of analog value will be available at the output. So let us see the first type, or we can say how this thing will be seen in digital to analog signal. Let me show you some representative way. For example, in a block schematic way, if I show something like this, do you see this? That if I am giving something different digital data, its equivalent analog signal I am able to get. Just with the one example, I may try to show you how different digital data can be in graphical, as well as its equivalent will be visible to us. If you can see this one, how does it seems that at the y-axis, this is for analog to digital actually. This is some analog input for which this digital data is shown. But how the quantization and all these things plays a role, that we'll see. But what I can show here, that for this 0 input, I have quantized it to a digital, let's say I have made it for 3 bit. 3 bit है तो 2⁻³ लेवल्स रहेंगे, यानी 000 to 111 ये डिजिटल डेटा, यानी कि 8 लेवल्स में हम लोग उसको डिवाइड करेंगे उस एनालॉग सिग्नल। तो मान के चलो कि हमारा जो एनालॉग की रेंज है वो 0 to 1 वोल्ट है। इट कैन बी 0 to 5, इट कैन बी एनीथिंग। इस 0 to 1 वोल्ट को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2 ही लेवल में मैंने डिवाइड किया होता तो मैं क्या बोलता कि 0.5 से अगर बढ़ के है तो इसको लॉजिक 1 दे दो, और 0.5 से लेस देन है तो इसको लॉजिक 0 मान दो। इसी तरीके से हम बोल सकते हैं 2 बिट के लिए कि 0.25 0 से 0.25 है तो मैं बोलूंगा कि 00। 0.25 to 0.5 वोल्ट है तो मैं बोलूंगा 01। 0.5 to 0.75 मैं बोलूंगा 10, और 0.75 के मोर देन अप टू 1 रहा तो 11। तो ये समझ में आ रहा हाउ आई एम क्वांटाइजिंग? आर यू गेटिंग इट? इसी को 3 बिट में कैसे किया है ये यहाँ दिखाया है कि अगर आप इसको देखेंगे तो इस 0 to 0.125 इनपुट तक के लिए इसने दे दिया है 00, फिर 0.125 to 0.25 00। तो इस तरीके से लेवल है कि इसके बीच में एक ही वैल्यू है, इसलिए वर्टिकली जा रहा है, वो इतना बड़ा एक ही वैल्यू है इसके। फिर 0.125 to 0.25 एक ही डिजिटल डेटा है। इस तरीके से 1 वोल्ट रहेगा तो मैं 1111 मेंशन करूंगा। कब? 0.875 to 1 वोल्ट। 0.875 इससे बड़ा रहा अप टू 1 वोल्ट तो मैं इसको दे दूंगा डिजिटल डेटा
111. So can you see here, ये जो दो डेटा है कि 0 वोल्ट टू 0.125, इसके बीच में हमने सिर्फ एक ही डिजिटल डेटा लिया है। फिर 0.125 टू 0.25, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। यहाँ वर्ड देखो, ये क्वांटाइजेशन, दैट वी आर डिवाइडिंग, क्वांटाइजिंग। और यहाँ पे जब हम अलग अलग ये एनालॉग की वैल्यू लेंगे, इसको बोलेंगे हम सैम्पलिंग। मतलब होता क्या है कि अगर ये सिग्नल है डिफरेंट, ये सिग्नल है जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो इसकी अगर मुझे डिजिटल डेटा निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग कम्युनिकेशन में पढ़ते, पहले सैम्पलिंग करना पड़ेगा एट रेगुलर इंटरवल। वी आर सैम्पलिंग इट, मतलब इस लेवल पे 0, इस लेवल पे ये वाली वैल्यू, इस लेवल पे ये वाली वैल्यू, इस लेवल पे ये वाली वैल्यू, इस लेवल पे, इसको बोलेंगे, जो एक्स एक्सिस में मैं वैल्यूज ले रहा हूँ इसको बोलेंगे सैम्पलिंग। ओके, ऐसे वर्ड से आप लोग को अब काम पड़ेगा, इसको बोलेंगे सैम्पलिंग। और यहां से यहां तक, सपोज ये मैक्सिमम इसका एनालॉग जा सकता था यहां तक, और ये सपोज 1 वोल्ट है, तो इसको जब डिवाइड करते हैं हम, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। मतलब ये 111, तो ये बीच की चीज, और ऐसे जितने हम डिवाइड करेंगे इसमें, यानी ये 000, ये 001, ये 010, ये 011, तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन। सो आई होप you understand the meaning of quantization, and these are known as sampling. We are taking the value of the analog signal at a particular interval is known as sampling, and if I quantizing the intensity or the amplitude, that is known as quantization. Now we know इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, अभी 0 ट्रिपल, ये बोल सकते हैं आप 0 to 0.125 में एक ही डिजिटल डेटा दिया है, तो इसमें अगर 0.1 भी रहा तो 00, 0.01 भी रहा तो 000, तो हम बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक ये क्वांटाइजेशन नॉइज है, दैट इट इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू एनालॉग वैल्यूज, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन एरर, which is plus minus half LSB। LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी 001 ये एक डेटा है, तो 0002 001 में जो एनालॉग वैल्यू है उसकी हाफ वैल्यू प्लस माइनस दोनों तरफ रहेगी ना, पॉजिटिव और निगेटिव, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर। नाउ लेट अस सी सम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल। आर यू गेटिंग इट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो, दैट द गिवन एनालॉग सिग्नल इज divided and that are being coded with different digital data, and we are able to say if the value lies between this range, this code is given, if it lies between particular this range, this code is given, and in this way we are, you can say, converting that analog signal to digital, either or digital to analog. Now यहाँ पे एक टर्म आया है, देखिए अगर आप देखेंगे, इसको बोला है फुल स्केल, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ये एक वर्ड आया। मतलब हम लोग कौन कौन से वर्ड से जूझ रहे हैं अभी? क्वांटाइजेशन एरर, क्वांटाइजेशन, सैम्पलिंग और एक फुल स्केल रीडिंग। और एलएसबी तो आपको मालूम ही है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो अभी थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि इनपुट आउटपुट इक्वेशन कैसे रहता है, मतलब उसकी वैल्यूज कैसी डिसाइड होती। तो ये आउटपुट वोल्टेज वीओ इक्वल्स टू जो भी आपकी फुल स्केल रीडिंग है, वोल्टेज है, वो इनटू कि आपका एन बिट अगर डीएसी या एडीसी है, एन बिट यानी इसकी वैल्यूज कैसी रहेगी, D0 to Dn-1 इस तरीके से चलेगी। मान के चलो D0 इज LSB और Dn-1, यानी अगर ऐसा लिखा है 1011 तो मान के चलो ये D0 है और ये 1 2 3 D3 है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं कि VO इक्वल्स टू ये फुल स्केल रीडिंग और यहाँ पे Dn-1 2⁻1 प्लस Dn-2 2⁻2 प्लस ऐसे करते करते D1 ये जाएगा 10-2 D0 2⁻n-1। अब ये थोड़ा अगर इक्वेशन गड़बड़ सड़बड़ लग रहा है तो मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल ले लेता हूँ। इसमें VFS क्या है, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, यानी मैक्सिमम पे कितना आएगा वो वोल्टेज लेवल है, और D0 ये LSB है मेरा और Dn-1 इज MSB। बुक में अलग अलग रह सकता है, आप एक कोई भी चीज समझने की कोशिश करना। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसके बाद हम लोग शुरू हो जाएंगे कि सपोज
ऐसे करते कि एक एग्जाम्पल हो सकता है जैसे पूछा जाता है एग्जाम में, वैसे ही होता प्रॉब्लम कि कैलकुलेट द एनालॉग आउटपुट ऑफ अ 4-bit DAC if the digital input is 1011 and assume full scale voltage equals to 5 volts। क्या समझ में आया कि हमने डिजिटल डेटा दिया है 1011, VFS है 5 वोल्ट और हमको चाहिए है एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं आउटपुट वोल्टेज इस तरीके से निकालूं तो कैसे निकलेगा? तो हम आउटपुट वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते थे कि VO इक्वल टू VFS, और यहाँ पे जो लिखा है कि DN माइनस 1 2 रेस्ट पावर माइनस 1 यानी क्या हो गया? अगर आप देखें तो ये हो गया डिवाइड बाई 2, प्लीज DN माइनस 1 है माइनस 2 रेस्ट पावर 2 DN ऐसे चल रहा है ये इस तरीके से D0 बाय 2 रेस्ट पावर n माइनस सॉरी 0, ये बढ़ते जा रहा है ना 2 रेस्ट पावर n माइनस 1, ठीक है इस तरीके से। तो अभी इसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा? फुल स्केल वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट। यस, यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ रख दिया। नेक्स्ट हमको देखना है अभी कि हमारा डेटा क्या है। हमारा डेटा है 1011 MSB लेना है हमको, तो 1 ले लिया डिवाइड बाई 2 प्लस उसके बाद 0 बाय 2 स्क्वायर प्लस उसके बाद 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 4। आगे के ध्यान में ये क्या किया मैंने, ये जो है ये यहाँ आ गया, ये 0 जो है यहाँ आ गया और इस तरीके से ये जो 1 है वो यहाँ आ गया और ये जो 1 है वो यहाँ आ गया। अब तो ठीक है, बस यही वैल्यू जो निकलेगी ये वैल्यू उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 0.5, ये 0 1 बाई 2 रेस्ट टू पावर 3 यानी 0.125। इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये करीब करीब आता है 3.4375 वोल्ट। इसका मतलब फॉर दिस डिजिटल डेटा दिस एनालॉग आउटपुट इज देयर। चलो मुझे बताओ कि 4-bit DAC है और डिजिटल डेटा है 1101 और फुल स्केल वोल्टेज है 5 वोल्ट, तो एनालॉग आउटपुट कितना आएगा बताइए जल्दी। क्या आप बताओगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। आंसर बताना है आप लोगों को, रॉन्ग है मेहनत करो जरा। इसके पहले का डेटा क्या था मालूम है? इसके पहले का डेटा था 1011। ये बताओ ये वाला डिजिटल डेटा उससे बड़ा है कि छोटा है? ये निश्चित ही उससे बड़ा है। एनालॉग वैल्यू कम कैसे आई आपकी? यस इट इज करेक्ट 4.0625। किसने दिया जवाब? अथर्व। दैट इज द करेक्ट वैल्यू। अथर्व खोड़े 4.0625। सभी लोग क्रॉस चेक करो कहाँ गलती हुई और अब आ रहा है क्या, इतना सिर्फ बताना मुझे वो आंसर आ रहा है क्या, मैं आंसर बताऊंगा। यू नीड टू से दैट दिस इज द करेक्ट। कहाँ गलती हुई जरा ध्यान दो और कैलकुलेट करो। आई सपोज एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे कुछ चीजें हैं जो समझ में आती है, रिजोल्यूशन नाम की चीज से आप लोग बार बार यू डू कम अक्रॉस। जैसे आप मोबाइल के ये सब देखते हैं इमेजेस, तो आप बोलते हैं इसका रिजोल्यूशन अच्छा है इसका नहीं है वगैरह बोलते ना, आप बोलते कि नहीं? आप रिजोल्यूशन तब हाँ मेगाबाइट्स में जैसे करते हैं, इसकी तरह अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो रिकॉर्डिंग अगर आप सोच के देखो 2 ही लेवल में हो रहा है, यानी 0 से 5 वोल्ट एनालॉग सिग्नल है, यानी 0.25 के अबाव रहा तो लॉजिक 1 और 0.25 के अगर 0, तो इसमें सिर्फ 2 ही लेवल, तो रिजोल्यूशन कितना है ना इसमें नॉइज ही रहेगा कि 0 to 0.25 एक ही ले रहा है। वही मैं 2 बिट का करता हूँ तो मैंने क्या किया कि 0 to 0.25 ये 0 0, 0.25 to 5 ये 0 1, इस तरीके से अप टू 5 वोल्ट 1 1। तो ये 4 लेवल में गया तो इसका रिजोल्यूशन और भी बढ़ गया। इसका ये मतलब कि अगर आप इस ग्राफ को देखो कि इफ आई एम सैंपलिंग एंड क्वांटाइजिंग टू ए लेस वैल्यूज आई हैव अ लो एक्यूरेसी, whereas if I quantize it to a many levels I am able to get a increased accuracy. Do you agree with this one? मतलब एक तो क्वांटाइजेशन की भी लेवल बढ़ाओ और सैम्पलिंग भी की, यानी रेगुलर टाइम पे, यानी दूर दूर। ये देखो यहाँ से यहाँ तक इतना वैल्यूज का चेंज आ गया था जब पहला सैंपल लिया और उसके बाद का दूसरा सैंपल लिया, तब तक के बहुत सारा चेंज हो गया।
तो हो सकता है सारे गमा में का रेगा रह गया, ऐसा ना हो जाए, तो गाना पूरी तरीके से सुनाई उतनी क्वालिटी में नहीं आएगा। तो जितना ज्यादा सैंपल करोगे उतना अच्छा, फिर जितना ज्यादा क्वांटाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा। यानी अगर मैं बोलूं कि 4 बिट D2A है और 8 बिट D2A है, तो किसका रिजोल्यूशन ज्यादा रहेगा बताओ तो सही, किसका रिजोल्यूशन ज्यादा रहेगा? 8 बिट। पक्का, यस, यू आर वेरी मच देयर, ठीक है ना। तो ये आपके ध्यान में आना चाहिए, अदरवाइज हमको कुछ समझ में नहीं आया ऐसा भी नहीं होगा। और हम जिस तरीके से अभी डिवाइड कर रहे हैं उसकी लेवल के हिसाब से एक एग्जाम्पल की तरफ पे दिखा रहा हूं मैं। अभी हमने जो क्वांटाइज किया सपोज, तो मैं ये सिग्नल सपोज 8 वोल्ट का है अगर, तो मैंने कैसे डिवाइड किया है कि 0 to 0.5 ये हो गया मेरा 000, 0.5 to 1.5 ये 001। तो यहां से यहां तक के मेरी एक LSB हो गया अप टू 1 दिस 1 000 से 001। तो इसके बीच में अगर कोई वैल्यूज आती है तो वो थोड़ा एरर होता है कि मैं 0.6 भी उतना ही है, 0.5 की भी वैल्यू इतनी है और 1.4 की भी उतनी ही वैल्यू है, तो इसका मतलब इतने इसका एरर है। तो ये एरर कम करने के लिए हमको क्वांटाइजेशन ज्यादा करना पड़ता है, पर इसका प्रॉब्लम क्या आएगा, हमको मेमोरी साइज ज्यादा लगेगी, मेमोरी साइज ज्यादा लगेगी। अगर आपके ध्यान में आता हो तो जब आप पिक्चर लेते हैं, तो जब ओरिजिनल पिक्चर लेते हैं और अच्छी क्वालिटी का लिखते हैं तो वो 4 MB वगैरह के पिक्चर्स रहते हैं, जबकि वही कॉम्प्रेस रहा तो वो KB में आ जाता है, लेकिन बहुत नॉइजी या रिजोल्यूशन उसका बहुत कम उतर जाता है। तो इसका मतलब जब हायर रिजोल्यूशन चाहिए है तो आपको डेटा साइज बढ़ेगा ही बढ़ेगा, डेटा साइज बढ़ेगा, ठीक है ना। बस अगर आपको डेटा स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन गो फॉर दिस। ये कब प्रॉब्लम देता है डेटा साइज का? इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन। जब आप लाइव स्ट्रीम सुन रहे, लाइव पिक्चर देख रहे, या उसी में स्ट्रीमिंग चल रही पिक्चर या किस में, तब हायर रिजोल्यूशन में आपने देखा होगा कि स्लो हो जाता है, बफरिंग होता है, वही लो रिजोल्यूशन में कंटिन्यूस आता है। हैव यू रियलाइज दिस? मूवी या पिक्चर देखते वक्त या यूट्यूब का वीडियो देखते वक्त जैसे ही आपका नेटवर्क का अगर प्रॉब्लम आ गया तो वो लो रिजोल्यूशन में चले जाता है, अगर ऑटो सेटिंग होगी तो, है ना, या फिर बफरिंग होता है, वो घूमते रहता है। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, हाउ वी आर क्वांटाइजिंग अप टू दिस वन। जैसे ये 7 में लेवल में डिवाइड किया कि 7.5 से 6.5 to 7.5 to a logic 111. So I hope you are able to get it. So let us see first digital to analog converter, that is पहला लेंगे हम वेटेड रजिस्टर, बाइनरी वेटेड रजिस्टर DAC। अब पहली बार आप लोग, मुझे लगता है कि ऑप एम्प नाम की चीज अभी तक आपको आया नहीं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और ये जो चीज है ये नेक्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंट सेपरेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि इसका सिंबल ट्रायंगुलर होता है, यहाँ ये एम्पलीफायर है, और इतना ही याद रखो कि सपोज ये इसको अगर यहाँ पे निगेटिव फीडबैक दिया इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, ये आउटपुट टू इनपुट इन्वर्टिंग में आया हुआ, इसको फीडबैक रजिस्टर बोलेंगे, इसको R1 बोलेंगे। तो इसमें 2 टाइप होते हैं, एक तो अगर यहाँ इनपुट दिया व्हील तो ये होता है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इसको ग्राउंड कर देते हैं। दूसरा टाइप होता है कि आपने, इसलिए यहाँ ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इसको ग्राउंड कर दिया और इसको इनपुट दिया, तो ये नॉन इन्वर्टिंग में दिया है इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं, और ये इन्वर्टिंग को दिया तो इसको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं। और इसमें इतना ही याद रखना, इन्वर्टिंग में जब आएगा तो इसका आउटपुट ये होता है AF, मतलब इसका गेन टाइम्स इनपुट, इसका गेन आता है, ये इन्वर्टिंग है तो -RF/R1, ये जो फीडबैक रजिस्टर डिवाइड बाय दिस रजिस्टर, और निगेटिव क्योंकि इन्वर्टिंग है, मतलब अगर पॉजिटिव साइकिल दिए तो एम्पलीफाई होके 180 डिग्री फेज शिफ्ट में इस तरीके से आता है, ठीक है, इतना याद रखना। और यहाँ पे होता है, अगर ये RF है या R1 है तो यहाँ आउटपुट आता है AF टाइम्स Vin, और यहाँ AF रहता है 1+RF/R1। तो यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब इन्वर्टिंग में अगर ये साइकिल दिया है तो ये उसी फेज में रह के एम्पलीफाई होके ऐसा मिलता है। इतना याद रख लोगे ना, यहाँ पे फिर बायसिंग हम देते प्लस VCC और माइनस में, इतना ध्यान रख लोगे ना, इससे ज्यादा अभी नहीं बता सकता, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले। अब हम किस चीज की ओर ध्यान दे रहे?
रजिस्टर जो वेटेड है और जो बाइनरी वे में वेटेड है। बाइनरी वे में वेटेड मतलब 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। और ये काम क्या करता है, ये यहाँ पे जो भी करंट है उसको यहाँ पे वोल्टेज के फॉर्म में बना रहा है, समझ के चलना। तो उस करंट का हम इस्तेमाल करेंगे कैसे, लेट अस सी। अगर ये वेटेड रजिस्टर का मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि हमको इस ऑप एम्प में, अभी थोड़ी देर के लिए ऑप एम्प भूल जाओ, लगे तो सिर्फ इतने देर के लिए ध्यान रखना कि ये ऐसा कुछ लगा हुआ है। अगर यहाँ RF है और इसको मैं R2R का नेटवर्क कनेक्ट कर रहा हूँ किस तरीके से कि यहाँ पे एक रजिस्टर है उसकी वैल्यू 2 to power 1 R है, फिर और एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 2 raised to power 2 R है, मतलब इसके डबल। फिर ऐसे करते 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 लास्ट में सपोज और एक ले लेता हूं, लगे तो 2 raised to power 3 into R, और ऐसे करते करते आप कितना भी जा सकते हैं और इसको बोल सकते हैं आप 2 raised to power n R। ये इनको बोलेंगे हम बाइनरी वेटेड रजिस्टर्स। तो आपके इतना तो ध्यान में आ गया। और ये इसको मैंने ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब ये इन्वर्टिंग मोड में है, नॉन इन्वर्टिंग नहीं है। इसको अपने आप प्लस VCC और माइनस V आप देके रखो और यहाँ से आउटपुट ले रहा हूँ। ये RF अभी छोड़ दो और आप सिर्फ इतना ध्यान दो कि यहाँ से जो भी करंट, ये अलग अलग करंट है, ये सब करंट जो यहाँ से जाएगा वो यहाँ पे टोटल करंट यहाँ बनेगा जो कि इससे इक्विवेलेंट रहेगा। ठीक है, यानी दिस, अगर यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगा है तो ये सब करंट का सम इज इक्वल टू दिस करंट का सम। इतना याद रखो, बाकी कुछ नहीं। और याद रखना कि ये MSB कहलाएगा, यानी यहाँ पे जो डिजिटल वैल्यू आप दोगे वो MSB कहलाएगा। तो डिजिटल डेटा क्या देते हैं हम लोग, या तो 0 या क्या देते हैं 1। इसको लगा देंगे, ये सब जो लगे, ये सपोज VCC को लिखा है या फिर रेफरेंस वोल्टेज को दिया है, यानी इसको देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको दे देंगे तो 0। यहाँ पे लिख देता हूँ ये 0 और ये 1। इस तरीके से हर इनपुट में आएगा ये, और ये यहाँ पे कनेक्टेड। ऐसे करते करते हम सबको दिखाएंगे। अगर इसको ग्राउंड को कनेक्ट किया है तो 0, अगर इसको कनेक्ट किया है तो 1। इस तरीके से याद रखना है। इतना भी अगर आपके ध्यान में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अभी समिंग एम्पलीफायर टाइम काम कर रहा है, मतलब यहाँ से जो भी करंट है, यहाँ से जो भी करंट है, यहाँ से जो भी करंट है, उन सबका सम हो रहा है। इतना याद रखना। ये है वेटेड रजिस्टर टाइप DAC। इसका मतलब अगर यहाँ पे 0 देना है, यहाँ 0 देना है तो इस साइड कनेक्ट होगा। अगर इसको 1 देना है, इसको 1 देना है तो ये यहाँ कनेक्ट होगा। बस अब याद रखो कि ये सब करंट का जब मैंने सम बोला है तो वो किस तरीके से जा रहा है। ये जो I0 करंट है ये सब करंट का सम है, मतलब यहाँ से जाने वाले सभी करंट की I1 प्लस I2 प्लस जितना भी होगा IN तक के जो भी करंट जा रहा है। और सब करंट की वैल्यूज किस तरह हो रही है कि यहाँ रेफरेंस वैल्यू अगर VR है तो एक VR बाय 2R, क्योंकि यहाँ का रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी 2R। फिर क्या होगा VR बाय 4R, या इसको मैं लिखता हूँ 2 raised to power 2R, इतनी वैल्यू। ऐसे करते करते VR बाय 2 raised to power n R। और इन सब में हम यहाँ पे वैल्यूज क्या लिखेंगे कि सपोज ये DN है, ये DN -1 है, और ये इसको -1 लिखता हूँ, इसको -2 लिखता हूँ और इसको D0 लिखता हूँ। यानी डिजिटल डेटा का ये LSB, ये MSB, इस तरीके से सोचना है। अगर ये 1 है तो यहाँ 1 आएगा, नहीं तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। इस तरीके से हमको सोचते हुए जाना है। तब आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स टू ये करंट इनटू जो रजिस्टर है RF वो आएगा। करंट क्या है, जो इन सब चीजों का सम है। ये अगर ये 1 क्वांटिटी है तो ये क्वांटिटी आएगी, 0 है तो ये DN 0 आ जाएगा, तो अपने आप वो क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो अपने जबी के फार्मूले के जैसे क्या होगा, VO इक्वल टू VR टाइम्स RF बाई R, ये सब R कॉमन निकाल सकता हूं मैं, इनटू DN -1 2 raised to power 1 DN -2 2 raised to power -2 प्लस 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 D0 2 raised to power
-1 -2 -n-1 इस तरीके से चलने देते हैं। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है जिसको RF के इक्वल टू RF/R लेकर आउटपुट वोल्टेज VO इक्वल्स टू आप बोल सकते हैं कि, और इसकी इक्वल टू 1 कर लिया तो K इक्वल टू 1, तो सिंपल फार्मूला हो जाएगा VR, और यहाँ पे आ जाएगा आपका dn-1 2 raised to power dn-2 2 raised to power -2 करते करते d0 2 raised to power -n-1। इसको हम एक आधा प्रॉब्लम करके देखेंगे तो अपने आप ये आ जाएगा। तो ये D2 DN क्या है बताएगा कोई? D0 D1 यही तो डिजिटल डेटा है, where this D0 is representing as LSB and this dn-1 is representing MSB। इसको क्या करता हूं, 3 बिट के लिए अगर बनाने बोलता तो कैसे दिखता? 3 बिट वेटेड रजिस्टर, एक ऑप एम्प लेंगे, नॉन इन्वर्टिंग ग्राउंड कर देंगे, इन्वर्टिंग में एक रजिस्टर RF लगाएंगे जिसकी वैल्यू हम बाद में सोच सकते हैं, ये इसका समिंग पॉइंट है, और यहां से हम डिफरेंट रजिस्टर लेंगे जो बाइनरी वेटेड है, मतलब पहले 2R, उसके बाद 4R 2 raised to power 2 यानी, उसके बाद 8R, और ये सब जो कहलाएंगे ये हमारा रहेगा। यहाँ पे हमने LSB कहा लिया था, हमने MSB इधर रहता है, ये नहीं भूलना है आपको, ये MSB है, ये LSB है। तो ये क्या कहलाएगा? D2, ये D1 और ये D0। अभी समझ में आया ना आपको? yes, चलो, अगर मैंने इसको डेटा दिया होता 101 देना होता तो कैसे देता? तो ये भी हम सोच लेते कि 1 देना है तो इसको इस पे कनेक्ट करना पड़ेगा जो VR रेफरेंस वोल्टेज को है। ये 0 देना है तो इसको ग्राउंड को लगाना पड़ता, इसको 1 देना है तो ये यहाँ कनेक्ट करना पड़ता। अभी आ रहा है ध्यान में आपके कैसे डेटा दिया है? ये 1, ये 0 और ये 1, तो ये MSB 1 0 1 इस तरीके से है। इस तरीके से हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर आप इसके वैल्यूज को डिवीजन देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगा कि आपका डिजिटल इनपुट और ये आप एनालॉग आउटपुट अगर देख रहे तो सपोज 0 0 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से अगर हम बढ़ रहे हैं आगे तो हमारी वैल्यूज क्या होंगी? तो पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे 0 वोल्ट, उसके बाद जो रेफरेंस वोल्टेज होगा डिवाइड बाय 2 raised to power n यानी कि 3 बिट है तो 8, फिर ट्वाइस VR by 8, फिर थ्राइस VR by 8, यानी आप बोल सकते कि VR by 8 ये एक LSB है, एक स्टेप है, ठीक है। ये फिर 4 VR by 8, ये 5 VR by 8, ये 6 VR by 8, इस तरीके से जो भी रेफरेंस वोल्टेज होगा ये 7 VR by 8, इस तरीके से आपको एनालॉग वैल्यूज मिलेगी। यहाँ VR अगर 5 वोल्ट होगा तो 5 डिवाइड बाई 8, यहाँ होगा तो ये 10 डिवाइड बाई 8, इस तरीके से ये बढ़ते बढ़ते जाएगा, लास्ट में 7/8। अगर इसको प्लॉट करूं मैं तो किस तरीके से दिखेगा आपको थोड़ा सा अंदाज देने के लिए मैं बताता हूं कि अगर जभी के हिसाब से कि मैं इनपुट्स दे रहा हूं, यहाँ पे डिजिटल इनपुट्स दे रहा हूं, ये सपोज है मेरा 000, ये 001, ये 010, इस तरीके से मैं कर रहा हूं। तो अगर आप देखेंगे तो पहले यहां से यहां तक 0 to 01 ये इसकी एनालॉग वैल्यू 0 ही है, इसके बाद यहां से यहां तक ये है VR by 8, फिर यहाँ पे यहाँ फिक्स है, फिर ये बढ़ते जाता है, फिर ये ट्वाइस VR by 8, इस तरीके से ये चलते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, ये आउटपुट है एनालॉग और ये रहेगा आपका 7/8 VR, ठीक है। इस तरीके से ये ध्यान में आ रहा है कि आपको कि जैसे जैसे डिजिटल वैल्यू बढ़ रही है आपका एनालॉग वैल्यू बढ़ रहा है, ये दिखाना है स्टेयरकेस से आपको, और ये स्टेप बताता है कि इतने से इतने रेंज तक एक ही वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक के एक ही वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक के एक ही वैल्यू है, लाइक दिस वन इट गोज ऑन। आई थिंक द टाइम इज ओवर, हम नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे आर्ट और इसको भी थोड़ा और एक बार डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक दिस इज ओके फॉर द टाइम बिंग।